Okay. Okay, you can hear me. Okay, Rahul ji, Atul ji, thank you. Leena ji, thank you. Rajinder ji, thank you. Okay. Jayakar ji, okay. Dilip Kumar ji, okay. So most of the participant can hear me. So the voice is clear. Okay. So good evening and welcome all to the session of chart patterns. Okay. So today's session is based on chart patterns. And before starting the session, I would like to know how many of you are doing the session for the first time and how many are doing it or repeat. It's a repeat session on chart patterns. Kindly confirm me on the chat. First time. Okay, Rajinder ji, first time. Pradeep ji, first time. Montu ji, first time. Okay. First time. Firoz ji, Leena ji, first time. Bhima Bhai ji, first time. Pallav ji, first time. Okay. Mohan ji, first time. Aditya ji, first time. Okay. Jaishwar ji, repeat. Okay. Gautam ji for the first time. So most of the participant more time. Rajinder ji for more time. Many time he have attended. Okay. Sunil ji for the first time. Okay. Rahul ji is also repeating. First time. Okay. So most of the people are like for the first time attending. Okay. Those who are repeating or coming for the second time, so it will be a revision for them. Okay. So Rahul ji also for the second time. Okay. So chart pattern session is based, the session is today is based mainly on chart patterns. Okay. So I will request you not to ask any individual stocks. Okay. Because that will disturb the session. Anything related to chart patterns. Okay. Questions, any related to chart patterns, you can ask me on a chat box and I'll try to answer all the questions. Okay. So limit your questions only to chart patterns. Okay. Because I've seen in many like sessions previously, like the question used to come on individual stock. So everybody will asking individual stock, so it will be very difficult. Okay. So we'll focus only on chart patterns. Okay. So that you are clear about how to trade using chart patterns. Okay. So without wasting time, let's start. So chart patterns is a part of a technical analysis. Okay. So in market, there are two type of analysis, that is technical analysis and fundamental analysis, right? So fundamental analysis is more based on, why the stock price is moving. What are the factors which is driving the price up? It is based on, financial statement, okay, profit and loss account, balance sheet, okay. So, and company's business model, okay, the management. So lots of things are there in fundamental analysis. Why the stock price will go up or why it is going up. They want to know fundamental analysis more about the reason. And technical analysis is more about the price. The price is moving up or down. That is important. In what direction the price is moving. Why is not important. Okay. So technical analysis is part of chart pattern is a part of technical analysis. Okay. And technical analysis is based on, history. What has been repeated in the past, it will repeat again in future. Okay. And the two main factors of technical analysis, demand and supply and volume. Okay. Demand, supply and volume. Okay. So what is demand and supply? Through chart, we will try to understand what are the demand zones, what are the supply zones, and where the demand is coming up. Okay. And where the supply is coming up. So chart patterns try to interpret those patterns, okay, where the demand may come. Okay. So it is with chart patterns, we can find what will be the next price movement until where it can go. Okay. What could be the target of that? So with chart patterns, can you please speak Hindi? Okay. Okay, मैं हिंदी में बताता हूँ. तो चार्ट पैटर्न्स अपने को क्या मेनली चार्ट पैटर्न्स क्या दिखाता है अपने को? भाव. तो टेक्निकल एनालिसिस जो बेस्ड है वो भाव के ऊपर, प्राइस के ऊपर है. ठीक है. तो प्राइस से अपने को पता लगता है कि प्राइस इसके बाद कहाँ जाएगा, आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ठीक है. और ये जाएगा तो कितने ऊपर तक जा सकता है. ठीक है. और अपने रॉन्ग पढ़ते हैं तो अपने को कहाँ पे निकलना है. तो जनरली अपने इससे टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे. चार्ट पैटर्न्स अपने को स्टॉप लॉस नहीं देता है, बट फिर भी अपने को कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस रखना पड़ता है. तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे व्हाट स्टॉप लॉस वी कैन कीप. तो अपने आप कौन सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं. ठीक है. तो चार्ट पैटर्न्स मेनली दो तरह के होते हैं. ठीक है. अब अपने सिर्फ चार्ट पैटर्न से बात करेंगे. तो चार्ट पैटर्न्स दो तरह के हो. एक है आपका टेक्निकल में कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक है रिवर्सल पैटर्न. राइट. तो अलग अलग कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं और अलग अलग रिवर्सल पैटर्न बनते हैं. नाउ
अब कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है और रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न वो होते हैं जो स्टॉक ऑलरेडी अगर प्राइस मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ टाइम समय के लिए वो एक रेंज में चलता है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि स्टॉक ने एक अच्छी प्राइस मूवमेंट दी, फिर एक स्मॉल रेंज बना के वो ऊपर नीचे करता रहता है, उस रेंज में काफी समय तक वो चलता है। जब वो रेंज को तोड़ के वापस ऊपर चलता है तो वो हो जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में बहुत तरह के पैटर्न आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसको अपने कंटिन्यूएशन बोलते हैं। तो कुछ नाम है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन आपका अप ट्रेंड में भी बन सकता है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। अगर अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद स्टॉक एक रेंज में गया एंड अगेन स्टॉक स्टार्टेड मूविंग अप, ठीक है, ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। या कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, नीचे गिरता गिरता गया, फिर उसके बाद एक स्मॉल रेंज में वो थोड़ा ऊपर बढ़ा, नीचे गया, ऊपर बढ़ा, एक रेंज में चला एंड वापस इट हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन, तो दैट इज अ डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन, ठीक है। एक ऊपर का कंटिन्यूएशन होता है और एक डाउनवर्ड का कंटिन्यूएशन होता है। तो ये हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो जो पहले ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड में वापस चलने लगेगा, ठीक है। तो जैसे अपने एक दौड़ लगाते हैं, लंबी दौड़ अगर लगाना है तो अपने कुछ समय बाद अगर थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वापस अपने दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये बोथ साइड हो सकता है, अप साइड या डाउन साइड। नेक्स्ट है आपका रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? ये मार्केट को रिवर्स करता है। अगर कोई स्टॉक बहुत ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, फिर वापस से उसमें करेक्शन आके उसमें सेलिंग आने लगती है, तो उसको होता है रिवर्सल पैटर्न। वो ऊपर से घूम के नीचे आ रहा है, दैट इज रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। या नीचे से घूम के ऊपर जा रहा है, जो नीचे नीचे से घूम के ऊपर जा रहा है वो है क्या? बुलिश रिवर्सल। और जो ऊपर से घूम के नीचे आ रहा है वो आपका बेयरिश रिवर्सल, ठीक है। तो यही चार चीजें हैं मार्केट में ओवरऑल। या तो मार्केट ऊपर बढ़ के वापस चल रहा है, या रिवर्स नीचे से गिर के ऊपर बढ़ रहा है। तो सब कुछ इसी स्ट्रेटेजीज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अपने पैटर्न सब डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने वैसे बताया कि रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ तो अपने पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे मैंने आपको कहा था कि तीन तरह के हैं। इसमें है सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। उसके बाद और एक है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग इज अ अपसाइड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। एंड बियरिश फ्लैग इज अ डाउनसाइड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। ये अपने डिस्कस करेंगे बाद में, ओके। देन देयर इज अ रिवर्सल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है? ये अपसाइड रिवर्स करता है, अपर ऊपर से नीचे की तरफ घूमता है, बियरिश रिवर्सल। इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। और जो नीचे से घूमता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न। तो ये सब पैटर्न्स अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जस्ट टू स्टार्ट मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हम लोग जानेंगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है, इसका टारगेट कैसे निकाला जाता है, इसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, राइट। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये देखनी है। एक है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड वन इज अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कैसे बनती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो आपके लोअर हाईज, मतलब ये जो हाई है इस हाई से लोअर है, ये हाई जो है इस हाई से लोअर है, और ये हाई जो है इस हाई से लोअर है। तो इन लोअर हाईज को कनेक्ट करते हैं तो अपने को डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलती है, राइट। अगर लोअर हाइस को कनेक्ट करते हैं तो वी गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ओके। और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन अपने हायर लोज, मतलब ये जो लो है इससे हायर है, ये जो लो है इससे हायर है, ये लो है इससे हायर है। तो हायर लोज को अपने ज्वाइन करते हैं तो वी गेट एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, राइट। तो एक हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ये दोनों लाइन आप देखें एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। ये पॉइंट एक लाइन कन्वर्ज हो रही है। जब ये कन्वर्ज होगी और इनका प्राइस रेंज आस्ते आस्ते छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए बड़ा रेंज था, छोटा होता गया, प्राइस रेंज छोटा होने लगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होने लगी, ओके। ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होने लगी, अब प्राइस एक रेंज में चला गया।
अब इसमें क्या है, दो तरह से ब्रेकआउट हो सकता है, या इसके ऊपर बंद होगा, दैट इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट। ओके, अगर इसके नीचे बंद हो गया तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का डाउन साइड ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अपने कब इसको एक्टिव होंगे, जब इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएगा, देन इट इज अ बुलिश ब्रेकआउट, और अपना यहाँ पे बाय एक्टिव हो जाएगा, राइट। बुलिश ब्रेकआउट एंड बाय विल गेट एक्टिवेटेड। ओके, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, आपको स्टॉकेज में चार्ट पैटर्न्स में अलर्ट आ जाएगा कि दैट सिमेट्रिकल, इस स्टॉक में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आपने इसमें अगर पोजीशन लेना है, तो आपने अगर पोजीशन ली तो व्हाट विल बी माय टारगेट। अब मैं इसमें पोजीशन लेने के बाद मैं टारगेट क्या लूंगा, ठीक है। तो इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने हाईएस्ट डिस्टेंस, ये जो कैंडल, ये जो हाईएस्ट डिस्टेंस है ट्रायंगल में, या वर्टिकल लाइन आप सबको दिख रही होगी, दिस, ये लाइन का हाई और ये लाइन का लो, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे अपने। सपोज ये लाइन का हाई है, ये टॉप हाई है यहाँ पे 200 रुपीज, और इसका लो है 150 रुपीज। ओके, आई एम रिपीटिंग इट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बिकॉज टारगेट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे टारगेट निकालना समझ जाएंगे तो बाकी सबके लिए भी सेम मेथड है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हाई जो है 200 रुपीज का है, ओके, एंड लो है 150 रुपीज का। ओके, तो 200 माइनस 150, डिफरेंस इज हाउ मच, 150। तो 150 का डिफरेंस आया, 200 यहाँ ऊपर पॉइंट था 200, नीचे पॉइंट था 150, तो 200 माइनस 150 मैंने किया तो डिफरेंस मेरे को मिला 50 रुपीज का, राइट। और सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 170 पॉइंट पे, 170 पे मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं उस 50 रुपीज को 170 में ऐड कर दूंगा। तो 170 प्लस 50, दैट इज 220। तो 220 विल बी माई टारगेट फॉर दिस स्टॉक। क्लियर, तो इसका स्टॉक का टारगेट क्या हो जाएगा, 220। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो अपने को टारगेट निकालने के लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगा ट्राइंगल के अंदर, जो कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये वाला है, इसका इसका हाई लेंगे और इसका लो लेंगे। सपोज इसका हाई 200 रुपीज है और इसका लो 150 रुपीज है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 200 माइनस 150, दैट इज 50 रुपीज। ओके, ये 50 रुपीज को अपने जो प्राइस पॉइंट है, सपोज यहाँ का प्राइस पॉइंट 170 है, तो इस पे अपने 50 रुपीज ऐड करेंगे, तो वी विल गेट अ टारगेट ऑफ 220 रुपीज। तो टारगेट अपने को मिल जाएगा 220 रुपीज। ओके, नाउ टारगेट का बात हो गई, अब स्टॉप लॉस। अब अपने स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे इसमें, अगर अपने स्टॉक लेते हैं, ठीक है, तो अगर अपने राइट नहीं पड़े, अगर कुछ गलत हो गया, तो अपने को कहाँ निकलना है, ठीक है। तो पैटर्न्स जनरली स्टॉप लॉस नहीं बताते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस डिपेंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। कोई कितने 5,000 का रिस्क ले सकता है, कोई 500 का रिस्क ले सकता है, कोई 50,000 का रिस्क ले सकता है। तो हर किसी का रिस्क कैपेसिटी अलग अलग है, राइट। तो भी अपने डिफरेंट वेज है जिससे अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो वील डिस्कस सम ऑफ द वेज जिससे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वे इज यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ विथ अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। तो 1:2 मीन सपोज अपना टारगेट है 50 रुपए का, तो वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज। ओके, वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज। इस केस में अगर मैंने 170 में बाय किया है, ठीक है, 220 का टारगेट है, तो 170 माइनस डिफरेंस कितना था, 50 रुपीज का था, उसका आधा कितना होता है, 25 रुपया। तो अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लेंगे, 1:2 के, अगर 50 रुपए का टारगेट ले रहे हैं तो 25 रुपए का स्टॉप लेंगे, तो मीन्स 170 माइनस 25, दैट इज 145। ओके, तो ये एक वे है, जितना मेरा टारगेट पॉइंट आया है उसका आधा हम स्टॉप लॉस लेंगे। अगर 50 रुपए का टारगेट है तो मैं 25 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, अगर 100 रुपए का टारगेट है तो मैं 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा। दैट इज द वन वे, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा वे क्या है, आपकी कोई ब्रेकआउट कैंडल हुई है, उस कैंडल के कुछ थोड़ा सा पॉइंट, आधा 1% का फिल्टर देके आप उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, एंड थर्ड, अगर ये इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे अगर बंद हो जाता है, इस लाइन के नीचे अगर बंद हो जाता है, देन आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वेज है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का वे एक वे है, आपका ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, और अगर यह अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे अगर बंद हो जाता है, ठीक है, तो आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली कोई भी स्टॉप लॉस रखें अगर आप, तो
1:2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1:2 के हिसाब से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, इसका एक एडवांटेज मिलता है हमेशा। अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं, इसमें अगर आप 5 ट्रेड्स 50% अगर आप राइट है 50% रॉन्ग है, देन ऑल्सो यू विल बी इन अ प्रॉफिटेबल मोड, आप प्रॉफिट में रहेंगे, ओके। सो आई जस्ट गो बैक टू क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आई गो टू द स्टॉकेज ऐप में फिर जाऊंगा और वहां पे अपने कुछ स्टॉक्स देखेंगे, ओके। तो बिफोर देयर आई एम गोइंग टू ओके request you to discuss about candlestick interpretation like rising star hammer and when possible in today's session. Thank you. Okay. Chart pattern cannot be seen. Okay. 220. So अभी अपने मैं आप लोग को स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और स्टॉकेज के ऐप में जा रहा हूँ, राइट। तो अपने स्टॉकेज के ऐप में आए, हियर यू कैन सी देयर इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल खोलते हैं। अपने यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है जो आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ से जाके, ओके। देन यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। स्टॉक्स में आपको डेट मिलेगी, आज की डेट, ठीक है, आज आपने। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट और पास्ट का टैब है। तो रिसेंट मीन्स जो हाल फिलहाल में स्टॉक इस स्कैनर में आए हैं, ओके। पास्ट में मीन्स जो पहले आए थे और अब उसमें से जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? आइदर उनका टारगेट अचीव हो गया है या वो अभी उनका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है, इसलिए वो पास्ट में चले गए। देन यू कैन सी देयर इज वन फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर है। तो यहाँ से आप स्टॉक्स चुन सकते हैं, कौन से लिस्ट का स्टॉक्स चाहिए आपको, ऑल स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अपना जो है वो मेजर स्टॉक्स दिया रहता है एंड इट इज रिकमेंडेड टू यूज मेजर स्टॉक्स, ओके। फिर आप देखें यहाँ पे स्टॉक्स का नाम दिया हुआ है, स्टॉक्स नेम, किस डेट में फॉर्म हुआ था, ओके, कौन से एक्सचेंज में हुआ था, क्या प्राइस पे इसका ब्रेकआउट हुआ था और अभी क्या इसका प्राइस चल रहा है, एलटीपी, राइट। तो अपने देखते हैं गुजरात गैस। एक मिनट मैं रिसेंट में आ जाता हूँ। तो रिसेंट में यू कैन सी 21 जून को एनबीसीसी एनबीसीसी आया था। इसका क्या प्राइस पॉइंट था? 163.72, ओके। एंड अभी प्राइस चल रहा है 166। सो लेट्स ओपन द चार्ट। तो ये अपने चार्ट खोला, तो इसने अपने यहाँ पे इस दिन ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट मींस जब भी ये कैंडल इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोज होगी, ठीक है, अपवर्ड ये इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर क्लोज होगी, तो यहाँ पे आपका अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये सेलेक्ट करना हो कि मुझे स्टॉक, ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है, वो मैं आपको बाद में अभी डिस्कस करके भी बताऊंगा कि आपके पास अगर 4 स्टॉक्स आए तो कौन सा स्टॉक्स मेरे को लेना है और कौन सा मुझे अवॉइड करना है। अगर कोई भी पैटर्न में अगर आया है तो उसमें से भी अगर मेरे पास 5-6 स्टॉक्स आए बट आई नीड टू बाय ओनली 2 स्टॉक्स, तो हाउ टू फिल्टर दोस 2 स्टॉक्स आउट ऑफ 5 और 10 स्टॉक्स, ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आई विल रिक्वेस्ट ऑल माई पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज फाइंड द टारगेट ऑफ दिस स्टॉक। आप लोग मुझे प्लीज बताइए ये स्टॉक का टारगेट क्या होगा, ओके। आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग एंड रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑल्सो टू कैलकुलेट द टारगेट ऑफ दिस स्टॉक। आप लोग अपना आंसर्स लिख सकते हैं, मैंने भी फाइंड कर लिया टारगेट। कैन राइट डाउन योर आंसर्स।
ओके, चेतन जी 240, ओके, हार्दिक जी 266, ओनका जी 215, वन प्लस 210, अनिल जी 70 पॉइंट्स, ओके, कामिनी जी 235, मोंटू कुमार जी 210, अतुल जी 246, सीए कौस्तव जी 204, दर्शित जी 242, मनीष जी 260, मोहन जी 230, कामनी जी 235, अंकित जी 235, दीपक जी 260, लीना जी 211, दिलीप कुमार जी 275। ओके, तो सबका टारगेट बता दिया, मैं भी अपना टारगेट बता देता हूँ। तो मेरा जो टारगेट आया दैट इज 235, मेरा टारगेट आया 235। तो जिनका भी अराउंड 220 240 के बीच में टारगेट है, इट इज वेरी क्लोज, ओके, एंड इट इज द करेक्ट टारगेट, ठीक है। तो 220 से लेके 240 के अंदर में अगर जिनका भी टारगेट आया है दैट इज द करेक्ट टारगेट, ठीक है। तो मैंने कैसे टारगेट निकाला, आई जस्ट डिस्कस। तो मैंने इसका हाई लिया, हाई इसका क्या था, इसका हाई मैंने लिया था 177, 176.85 है, तो मैंने 177 का हाई ले लिया। और यहाँ पे लो मैंने इसका लो लिया, दैट इज 105, ठीक है। ये भी लो था, हाँ, तो ये लो था 105, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने लो ले लिया 105। तो डिफरेंस जो आया अराउंड 70 पॉइंट्स का, 72 पॉइंट्स का, वो मैंने जो ब्रेकआउट प्राइस था दैट इज 164, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो वहां पे मैंने ऐड किया, तो आई गॉट अ टारगेट ऑफ 235, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है, एनी क्वेश्चंस? बट वेयर इज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट इज हियर, आई विल शो यू। जब भी प्राइस इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो अपना यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएगा, ठीक है। अब आप इसको ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे या नहीं, वो अपने डिस्कस करेंगे, हाउ टू कंसिडर इज द रियल ब्रेकआउट और नॉट, ओके। तो यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आपका अलर्ट में आ जाएगा, ओके। नाउ आई विल सी अनदर चार्ट एंड आई वांट टू शो यू द डिफरेंस। एक ये केपीआर मिल का भी है, ये केपीआर मिल का, यहाँ पे इसने इस लाइन के ऊपर इस दिन क्लोज कर दिया तो ये यहाँ पे अपना आ गया, राइट। और अपने आप देख सकते हैं रैडिको खैतान, जब भी प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया, सॉरी, इस दिन क्लोज किया, जिस दिन इस डे में क्लोज कर दिया प्राइस इसके ऊपर, तो इस दिन वो आ जाएगा। तो जिस दिन क्लोज करेगा इस लाइन के ऊपर इट विल कम। नाउ द थिंग इज हाउ टू अंडरस्टैंड इतने स्टॉक्स में से मैं कौन सा स्टॉक लू, राइट। तो आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, अगर आप एक स्टॉक देख लेता हूँ, दिस क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन। नाउ सी द डिफरेंस इन द ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है जो एक काफी कन्विंसिंग कैंडल के साथ हुआ है, वॉल्यूम बड़ा है, काफी बुलिश, लॉन्ग बुलिश कैंडल हुई है, ओके। ये एक ब्रेकआउट हुआ है एंड ये भी एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, जिसमें ये दोजी बनी है, ब्रेकआउट के बाद एक दोजी बनी है, मींस दैट इज इनडिसीजन। तो अगर मेरे को स्टॉक अगर लेना होगा रैडिको खैतान और क्राफ्ट्समैन में, अगर मेरे को स्टॉक्स लेना होगा, ठीक है, अगर स्टॉकेज में मेरे पास अलर्ट आया है और मेरे क्राफ्ट्समैन लेना है या रैडिको खैतान लेना होगा, तो आई विल गो फॉर रैडिको खैतान। व्हाई? बिकॉज द ब्रेकआउट इज कन्विंसिंग, इसके साथ वॉल्यूम में बड़ा है, लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, द ब्रेकआउट इज कन्विंसिंग। और जो लास्ट ब्रेकआउट मैंने दिखाया था अभी अपना रैडिको खैतान, उसमें आपका एक दोजी के साथ ब्रेकआउट हुआ था, तो आई विल अवॉइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, आपके पास पैटर्न्स के तो स्टॉकेज में बहुत से अलर्ट आ जाएंगे, बट उसके बाद नेक्स्ट आपका काम होता है कि उनमें से फर्दर फिल्ट्रेशन में करके बेस्ट स्टॉक कैसे निकालू, ओके, हाउ टू फाइंड द बेस्ट स्टॉक अमंग दैट। देखिए, रॉन्ग
आप बेस्ट स्टॉक निकालने के बाद भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। इट इज नॉट दैट कि मैंने बेस्ट निकाल लिया तो 100% गारंटी है कि स्टॉक टारगेट ही अचीव करेगा। इट इज नॉट लाइक दैट, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द टारगेट इज हायर, उसका चांसेस हायर है कि अपना टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, तो एक बार आपने ये देखा, तो जो अगर मैंने देखा एनबीसीसी का देखा चार्ट, ठीक है, तो इसमें भी आप देखें ठीक है, बट उतना कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं है, बिकॉज ऊपर में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। तो अगर मेरे को अगर पोजीशन लेना होगा तो मैं अभी यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, जब तक इस प्राइस के ऊपर नहीं चलेगा। आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद देयर हैज बीन अ सेलिंग प्रेशर, तो हो सकता है ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाए। ठीक है, तो आई विल अवॉइड दिस until and unless it moves above this, then only I will buy। ठीक है, केपीआर मिल का भी कंडीशन देख लेते हैं क्या है। केपीआर मिल में भी सेम कंडीशन है, ऊपर में प्राइस में क्या हुआ, ऊपर में प्रेशर आया, कैंडल आपकी फुल बुलिश कैंडल नहीं हुई, तो आई विल अवॉइड, आई विल वेट फॉर द स्टॉक टू मूव अबव दिस लेवल, राइट। तो ये सब स्टॉक्स हैं जिनमें आपका ये अभी रिसेंट में आए हैं। अगर आप इनका पास्ट का देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस, यू कैन सी द पास्ट में इनमें क्या किया है। somebody was saying to दीपक फर्टिलाइजर, मैं दीपक फर्टिलाइजर एक बार खोल लेता हूँ। ये है दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट। ठीक है, तो सिमिट एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आइदर इट कैन बी अपसाइड ब्रेकआउट या डाउन साइड ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों हो गया। यहाँ पे फर्स्ट इसने नीचे का ब्रेकडाउन दिया इलेक्शन वाले दिन। ओके, इट हैज गिवन आई थिंक इलेक्शन का ही डेट होगा, यस 4 जून, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन का रिजल्ट के डे इसने नीचे का ब्रेकडाउन दिया, बट ये वापस ऊपर चलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेकडाउन दिया था तो मुझे इसमें एक्ट करना था या नहीं करना था सेल के साइड में। क्यों नहीं करना था, क्योंकि ये वापस से इसने नीचे से बाइंग आ गई थी, तो मुझे को यहाँ पे अवॉइड करना था। मैं इसमें कब सेल करता, अगर वापस इस लो के अगर नीचे चलने लगता तो मैं इसमें सेलिंग पोजिशन बना लेता। ठीक है, अह, ये- तो होप टारगेट निकालना सबको क्लियर है। So how much lower low and higher high required to complete my, at least Hardik ji, two higher, two lower lows and two lower highs required। ठीक है, two low two lower highs, okay, two lower highs and two higher lows are required। 2 पॉइंट होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, 2 ऊपर में और 2 नीचे में पॉइंट होना चाहिए। सर दोजी कैंडल में बाय करना चाहिए, दोजी कैंडल में बाय नहीं करना चाहिए, दोजी कैंडल में वेट करना चाहिए जब तक दोजी कैंडल का हाई या लो नहीं तोड़ता है। दोजी कैंडल एक आपका इनडिसीजन कैंडल मानी जाती है, जहां पे ओपन और क्लोज सेम होता है, जहां पे प्राइस खुला था वहीं पे बंद हुआ, उसके आसपास में हाई और लो बनाने के बाद, तो मीन्स इनडिसीजन है। लोगों में मतलब ये बुल्स इसको कंट्रोल करेंगे या बियर्स करेंगे, अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया। जब डोजी के हाई के ऊपर चले तब आप बाय कर सकते हैं, या डोजी के लो के नीचे चले तो सेल कर सकते हैं। ओके, अगर बाय ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट में अगर दोजी बनी है तो दोजी के हाई के ऊपर चले देन ओनली यू बाय। काइंडली शो हाउ अलर्ट इज सेट इन स्टॉकेज। स्टॉकेज में आपको ऑटोमेटिकली जब भी कोई पैटर्न ब्रेकआउट होगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ओके, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। और वैसे अगर आपको जानना है तो आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अपने आपने मान ली 50 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाया है, तो अगर उसमें कोई पैटर्न बनेगा तो आप उसमें क्लिक करेंगे वॉच लिस्ट में, देन यू विल गेट एन, उस वॉच लिस्ट में ही आपका अगर कोई पैटर्न आया होगा देन ओनली इट विल शो, अदरवाइज यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट, एक और पैटर्न मैं आपको डिस्कस करता हूँ, इसके बाद है असेंडिंग असेंडिंग ट्राइंगल एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल। जैसे मैंने कहा सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपका अपसाइड या डाउन साइड बोथ साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। असेंडिंग ट्राइंगल जो होता है वो सिर्फ अपसाइड ब्रेकआउट देता है। मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ अगर मिल जाए मेरे को, जिसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल का बियरिश ब्रेकडाउन हुआ है। एनी स्टॉक, लेट मी सी।
हाँ, यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बेयरिश ब्रेकडाउन हुआ है, क्लोज इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे क्लोज हो गया है और प्राइस देन इट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। तो प्राइस नीचे गया देन वापस इट हैज रिकवर्ड। अच्छा, सॉरी, मैं एक चीज मैंने वो वाले स्टॉक में आप लोग के साथ वो डिस्कस किया, बट मैंने स्टॉप लॉस डिस्कस नहीं कर पाया। एक बार मैं स्टॉप लॉस डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें अपने ने टारगेट 72 पॉइंट्स का अपना टारगेट आया था, राइट। तो अपने स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं? तो मैंने अपने पहले आपको कहा था कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, राइट। तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस क्या होगा? 36 रुपीज का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। या मैंने कहा था ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल का ब्रेकआउट था, ठीक है, ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल थी, जबकि ये ब्रेकआउट कैंडल उतनी कन्विंसिंग नहीं हुई है। जब भी कोई ऐसी बुलिश कैंडल बने तो वो कैंडल का ज्यादा इंपैक्ट होता है कंपेयर टू दीज कैंडल्स, ओके, जिनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ऊपर में आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो इनको, तो आप स्टॉप लॉस इसमें 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपने बाइंग पॉइंट से, ओके। या फिर यहाँ पे आप अगर ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब के लो के नीचे से रखना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं। इसमें आपको ब्रेकआउट कैंडल का परफेक्ट एग्जांपल मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में। ये थी मेरी ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज अ परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं भी बाय करता हूँ आसपास में, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? इस कैंडल के लो के नीचे मैं रख सकता हूँ। ये कैंडल के लो के नीचे आप थोड़ा सा फिल्टर लगा के, ओके, जैसे इसका लो है 4399, तो आप 4399 है तो आप, और इस कैंडल का लो देखिए 4342, तो आप 4340 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ा ये कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल और ये कैंडल आसपास में ही है, तो मैं इस कैंडल का लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करूंगा, ओके। तो ये आपका ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब से टारगेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, इफ यू सी द टारगेट। अगर किसी को कोई डाउट है तो इसमें फिर से टारगेट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज टारगेट फाइंड करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टारगेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस कैंडल का हाई लेके इस कैंडल का लो लेके दोनों को डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके आप जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहां पे ऐड करके यू विल गेट द टारगेट, ओके। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Why not difference of first leg in the triangle in NBCC in first example? How do we get symmetrical triangle? 361, tell me HDFC Life Insurance chart. Okay. Already downloaded the app. So notification will come automatically. Okay. तो फर्स्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल के अंदर जो पैटर्न बन रहा है, एनबीसीसी में जो था एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ये पैटर्न आपने लिया था, ओके। I'll go back to the NBCC chart. I'll just change the screen. I'll just changing the screen. So NBCC, I'm opening it once again. तो मैंने ये वाला पॉइंट लिया था, ये पॉइंट नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ था, ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ अंदर में आके, ओके। हियर द ट्रायंगल हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग, ट्रायंगल के अंदर का यहाँ का पार्ट, ओके। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे आपको मैंने एक पीपीटी में भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एनबीसीसी में ये पॉइंट लिया है, आई हैव नॉट टेकन दिस पॉइंट, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट नहीं लेके मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हुआ है, ओके। तो सेम वाज द केस इन एनबीसीसी, ओके। सो नाउ आई जस्ट मूव टू डिसेंड असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो व्हाट इज असेंडिंग ट्रायंगल? असेंडिंग ट्रायंगल, इसमें सिर्फ अपसाइड ब्रेकआउट होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में सिर्फ अपसाइड ब्रेकआउट होता है, ठीक है।
ये डाउन साइड ब्रेकडाउन नहीं होता है, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अपसाइड भी होता है डाउन साइड भी होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में सिर्फ अपसाइड होता है। तो इसमें कैसे बनता है, देयर इज वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में थी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, एंड देयर इज वन हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन। ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन कैसे बनती है, बिकॉज ऑफ इक्वल हाइज। यहाँ पे हाइज क्या है, इक्वल हाइज है, और यहाँ का जो लो है हायर लोज है, हायर लोज से अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी है, और इक्वल हाइज से आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, ठीक है, इक्वल हाइट से। यहाँ पे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जो है आपका बैलेंस्ड है, डिमांड सप्लाई मैच कर रहा है, मतलब स्टॉक में जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, और स्टॉक में एक रेंज आ गया है, ठीक है, एक रेंज में चल रहा है। एंड हियर द सेलर्स आर एक्टिव, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, और यहाँ पे बायर्स एक्टिव है जो बाय कर रहे हैं, प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और आस्ते आस्ते प्राइस की जो रेंज है वो कम होती जा रही है। तो जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर बंद होगा, ये कब बंद होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाएगा। whenever there is a demand supply imbalance, the stock will close above this and stock will give a breakout। वो क्या होगा, आपका असेंडिंग ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसमें भी अपने टारगेट क्या लेंगे, ये हाई और ये लो लेंगे, इसका डिफरेंस निकाल के अपने ब्रेकआउट पॉइंट में लगाएंगे। वी विल नॉट टेक दिस हाई एंड दिस लो, ओके, वी विल टेक दिस हाई एंड दिस लो। जैसा कि एनबीसीसी केस में जो बाहर का नहीं लेना है अपने को, अंदर का लेना है। तो ये हाई और ये लो, अंदर के ट्रायंगल में जो सबसे हाईएस्ट होगा अपने को वो लेना है, ओके। तो दिस हाई एंड दिस लो को लेके वी विल एड टू द ब्रेकआउट पॉइंट, okay। So is it possible to find stocks one day before the breakout? It is not possible, that can only be a guesswork। तो टेक्निकल में आपका ब्रेकआउट होने के बाद ही आप कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे, आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलना चाहें देन यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन प्ले सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट इफ यू वांट टू प्ले अ ब्रेकआउट, दैट ब्रेकआउट इज ऑलवेज ऑन क्लोजिंग बेसिस। ब्रेकआउट हमेशा आपका क्लोजिंग बेसिस पे होगा, ठीक है। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस करना चाहते हैं, तो आप जब भी कोई असेंडिंग ट्रायंगल या कोई भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, आप सपोर्ट लाइन पे आके बाउंस बैक करना चाहे तो आप बाय कर लीजिए, यहाँ पे सेल कर दीजिए, फिर यहाँ आए बाय कर लीजिए, तो दैट वुड बी अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप खेल सकते हैं। बट आपको अगर ब्रेकआउट खेलना है तो दैट इज ऑलवेज अबव दिस, अबव लाइन के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा, ओके, देन ओनली इट विल बी अ ब्रेकआउट, ओके। ओके, सो इसका भी हम लोग टारगेट वैसे ही निकालेंगे, और ये हाई और ये लो को इसमें ऐड करेंगे, और स्टॉप लॉस का जैसे मैंने आपको 3 तरीका बताया है। फर्स्ट इज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दूसरा है कि आप ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे बंद होना, एंड तीसरा है अगर इसके नीचे बंद हो जाता है, ये लाइन के नीचे बंद हो जाता है, देन ऑल्सो यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, ठीक है। हाउ टू नो सपोर्ट, सपोर्ट आपको यहाँ जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में यहाँ पे दिख रहा है, द जो ये ट्रेंड लाइन बनी है, अगर कोई असेंडिंग ट्रायंगल है, अगर ट्रेंड लाइन बनी तो ट्रेंड लाइन के पास आता है, आने के बाद फर्स्ट बाउंस बैक अगर देता है, पहली बार गिरते गिरते ट्रेंड लाइन के पास आया और उसने पहली बार अपने वहां से बाउंस बैक चालू किया, तो आप उसको एक सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस गिर रहा था यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे बढ़ना चालू किया, फर्स्ट डे यहाँ पे आया, तो उसको आप सपोर्ट मान सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, ओके, फॉर टारगेट ऑफ दिस रेजिस्टेंस लेवल। तो वो हो जाएगा सपोर्ट, और ये हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप इससे कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। बट ब्रेकआउट जो अगर पैटर्न्स का क्या होता है, मेनली ब्रेकआउट पे ही होता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट पे आप जब भी खेलेंगे करेंगे, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लोज होगा तभी आप ट्रेड करेंगे, ओके। शो मी फ्रॉम स्टॉकेज ऐप, या आई शो डेफिनेटली ऑन स्टॉक ट्रेडेड ऑन बीएससी ओनली, गुजरात केमिस्ट बायोसाइंस, ओके। तो ये सब पहले के चार्ट्स हैं जो मैंने डाले थे, जो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट शो कर रहा है, ओके। रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज नॉट टू डिस्कस सिंगल, एक एक स्टॉक डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं एक एक स्टॉक डिस्कस नहीं करूंगा। जो अपना जो चैट पैटर्न का टॉपिक है वो फिर क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो अपने पैटर्न्स कंप्लीट कर ले तो टाइम बनेगा, तो बाद में इंडिविजुअल स्टॉक्स होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, ओके। चार्ट पैटर्न शॉर्ट टर्म के लिए या 2 से 3 महीने के लिए है। चार्ट पैटर्न अपना 3 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। अगर टारगेट आपका 1 महीने में अचीव हो गया तो आप 1 महीने में निकल सकते हैं, 10 दिन में अचीव हो गया तो 10 दिन में, मैक्सिमम यू कैन होल्ड अप टू 3 मंथ्स, आप इसको होल्ड कीजिए। 3 महीने के बाद आप इसमें निकल जाइए,
अगर आपका टारगेट अचीव हुआ है या स्टॉप लॉस अचीव हुआ नहीं भी हुआ है, अगर टारगेट नहीं भी अचीव हुआ है, देन यू कैन एग्जिट एंड लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज. ओके, so now I'll go to stockage app. तो स्टॉकेज ऐप में यू कैन सी, ये देखिए स्टॉकेज ऐप में यहाँ पे आपको ये ग्रीन असेंडिंग ट्रायंगल जो है ग्रीन का दिखा रहा है. ग्रीन कलर में क्यों दिखा रहा है? बिकॉज इट इज ओनली बुलिश पैटर्न. ये बुलिश ही ब्रेकआउट होगा तो होगा, अगर बुलिश नहीं होता है तो वी विल अवॉइड. ओके, और डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो आपको रेड में दिखा रहा है बिकॉज इट्स अ बियरिश पैटर्न. ये आपको बियरिश है मींस ये नीचे का ही जाने का है. ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे देता है तो अपने को अवॉइड करना है. और ये आपका येलो कलर में दिया हुआ है बिकॉज इट्स अ, इट कैन गिव बोथ, आइदर ये अपसाइड भी ब्रेकआउट दे सकता है या डाउन साइड भी ब्रेक डाउन दे सकता है. ओके, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न्स है. ठीक है, तो असेंडिंग ट्रायंगल में यू कैन सी यहाँ पे आपका आया है 5 स्टार बिजनेस, फोर्टिस हेल्थ केयर एंड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन. ठीक है, ये रिसेंट में अभी आया है, 7 जून को आया 5 स्टार बिजनेस. तो इस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था. ठीक है, यू कैन सी इस दिन, बट ये बहुत आपका क्या बोलते हैं इसको, ग्रेवस्टोन दोजी टाइप बना दिया, राइट? ग्रेवस्टोन दोजी, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग अपर अपर विक इसका बन गया, अपर शैडो. ठीक है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद द स्टॉक हैज कम डाउन, मींस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया था. तो इस दिन अगर मेरे को ब्रेकआउट दिया होता, वॉल्यूम था, तो मैं क्या इसमें नेक्स्ट डे पोजीशन लेता? आई भी मैं होता तो मैं नहीं लेता. क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सेलिंग प्रेशर मेरे को दिख रहा है. ठीक है, सो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आई विल अवॉइड दिस स्टॉक, आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक. ओके, अगर किसी को लेना भी है, बाई चांस अगर लेना भी है, तो अगर आप यहाँ लेते हैं तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में इस कैंडल के लो के नीचे आपको निकल जाना पड़ेगा. ओके, तो इसका टारगेट भी अपने कैसे लेंगे? ये हाई और ये लो का डिफरेंस निकालेंगे एंड ब्रेकआउट पॉइंट के बाद अपने ऐड कर देंगे, वी विल गेट द टारगेट. ओके, तो ये रिसेंट में है, पास्ट में भी अपने कुछ स्टॉक्स आए हैं. ठीक है, ये 3 जून को आया था अल्ट्राटेक सीमेंट. इस दिन आया था अल्ट्राटेक सीमेंट, बट ड्यू टू इलेक्शन रिजल्ट उस दिन वॉलेटिलिटी थी काफी, यू कैन सी. उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया एंड देन अगेन स्टार्ट मूविंग अप. ठीक है, तो ये स्टॉक्स में क्या करना होगा? अगर मान लीजिए किसी ने फर्स्ट डे ब्रेकआउट के बाद अगर लेना चाहा होता, तो जब भी आप कोई भी स्टॉक लेंगे तो फर्स्ट डे ब्रेकआउट के हाई के ऊपर ट्राई टू बाय अबव द फर्स्ट डे कैंडल का, फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर. तो इससे क्या होगा, बहुत से फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाएंगे. लाइक अगर यहाँ पे मैंने नहीं लिया होता तो मैं यहाँ बच जाता. और भी चार्ट्स अगर देखेंगे, अगर इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे जो अपने रिसेंट में आया था, 5 स्टार बिजनेस. ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये हाई के ऊपर नहीं गया आई विल अवॉइड, मैं नहीं बाई करूंगा. ठीक है, तो इससे क्या बहुत से फॉल्स ब्रेकआउट से अपने बच सकते हैं. ओके, ये आपका यू कैन सी वन एलेम्बिक फार्मा. ये देखिए, ये काफी दिस दीज ब्रेकआउट्स आर वेरी गुड ब्रेकआउट, जो आपको एक कंप्लीट बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, जिसके साथ आपका वॉल्यूम भी अच्छा बढ़ रहा है एंड इट आफ्टर गिविंग अ गुड ब्रेकआउट इट हैज गिवन अ रन, गुड रन. अपना टारगेट भी इसने अचीव कर लिया और कोई स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं किया. अपनी ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी प्राइस नहीं गया. अगर आप यहाँ पे बाय करते, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता और आपका टारगेट भी अचीव हो गया होता, राइट? यहाँ पे अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ. ठीक है, दोजी कैंडल के बाद, दोजी कैंडल में ब्रेकआउट वाज नॉट कन्विंसिंग, बट फिर भी जब इसकी हाई के ऊपर जाएगा तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर लेंगे. क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल दोजी कैंडल बनाया, उसके हाई के ऊपर गया तो अपने यहाँ पे बाय कर लेंगे एंड बाय करके अपने यहाँ का स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे. ठीक है, तो अपने यहाँ पे बाय किए और प्राइस उसके बाद ऊपर गया तो प्राइस अपना देखेंगे तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता, क्योंकि इस लो के नीचे क्लोज हो गया प्राइस, तो हियर द स्टॉप लॉस वुड गेट ट्रिगर्ड. तो आपका बहुत सा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, इस कैंडल के हाई के नीचे आपने बाय किया था और
इस कैंडल के लो के नीचे आप निकल जाते, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता, तो बहुत ऊपर जाने के बाद टारगेट तो अचीव हुआ नहीं, बट स्टॉक नीचे आ गया, तो आपका इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा। नो वरीज अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, बट अगर अपना आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी इन प्रॉफिट। ओके, so you can see this is a perfect breakout, you can see एक बुलिश लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। ओके, और नेक्स्ट डे इस कैंडल के हाई के ऊपर भी गया, तो अपने यहाँ पे बाय कर लेंगे और इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, आप ब्रेकआउट कैंडल लो के नीचे भी रख सकते हैं, या अपना टारगेट का मैंने जो आपको बताया था रिस्क 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसके हिसाब से भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हाउ टू ऐड क्वांटिटी ऑन द सेम डे ब्रेकआउट, और थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट में यू स्टार्ट, आप थोड़ा सा पहले लगाइए, ब्रेकआउट हुआ है, आप 50% अपना पोजीशन जो भी लेना है आपको, टेक 50% ऑफ द क्वांटिटी, और आपके वापस से ऊपर चलने लगता है, देन यू कैन ऐड अनदर 50%। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट, ट्राई टू स्टार्ट स्मॉल, फर्स्ट टेस्ट। एक कहावत है, डोंट ट्राई टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ ओशन विद बोथ योर फीट्स। ओके, डोंट ट्राई टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ ओशन विद बोथ योर फीट्स, मतलब दोनों पांव से ओशन की गहराई को, समंदर की गहराई को दोनों पांव से नापने की कोशिश ना करें। तो आप समझ गए होंगे, अगर दोनों पाँव अपने डाल देंगे तो हो सकता है अपने डूब जाए, बट एक पाँव अगर डालेंगे, राइट, एक पाँव से अपने देख सकते हैं कि कितना डीप है पाँव डाल डाल के, राइट। तो इसका अपने स्टॉकेज में इसका मतलब क्या हुआ कि अपना पूरा पैसा एक बार में ना लगाएं, आप थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होती है, लगता है मिस हो गई है, फिर आती है अपॉर्चुनिटीज, एक मिस होती है दूसरी जाती है। ठीक है, तो देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मार्केट खत्म होने वाली नहीं है, कोई स्टॉक मिस हो जाता है तो हो गया, कोई बात नहीं, आपको दूसरा स्टॉक मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, बट मिलेगा। तो पेशेंस विल पे इन द मार्केट। ठीक है, कोई भी स्टॉक भाग के पकड़ना नहीं है, आप अपने प्राइस जो लेना चाहते हैं उस प्राइस में ही बाय कीजिए। ये नहीं कि आपके प्राइस से भाग गया तो मैं अपने प्राइस के 10-20% ऊपर भी जाके बाय करूंगा, नहीं, आप वेट कीजिए, यू विल गेट द प्राइस। अगर नहीं भी फिर भी बढ़ने लगा तो आप दूसरे स्टॉक्स में ध्यान दीजिए, दूसरे स्टॉक्स को वेट देखिए। ठीक है, सो तो इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ब्रेकआउट भी जज करना होगा स्टॉकेज में, ऐसा नहीं कि स्टॉकेज में आपको 10 ट्रेड्स अलर्ट आ रहे तो आपको उसमें से भी जज करना होगा कि मैं उसमें से बेस्ट 2 कौन सा निकालूं। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, प्राइस देखेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट जो है कन्विंसिंग है कि नहीं। दूसरा फैक्टर्स आप क्या लगा सकते हैं, आप आरएसआई लगा सकते हैं, आरएसआई 50 के ऊपर है कि नहीं। आप आरएस लगा सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, मींस 0 के ऊपर है कि नहीं। आरएस दिखाता है कि ये बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर पॉजिटिव है, मींस इट इज आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, तो आप आरएस लगा सकते हैं, आरएसआई लगा सकते हैं, एंड आप इसमें सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हैं। अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, आरएसआई 50 के ऊपर है, ओके, एंड आरएस भी पॉजिटिव है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बाय ब्रेकआउट भी हुआ है, देन यू कैन गो फॉर अ बाय विथ आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करके। ठीक है, सैकत जी प्लीज डिस्कस अबाउट आरएस। आरएस मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बताता है, अपने 55 डेज का आरएस यूज करते हैं डेली चार्ट में। इसका मतलब है कि बेंचमार्क इंडेक्स, ओके, बेंचमार्क इंडेक्स एंड स्टॉक, स्टॉक जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी 2% बढ़ रहा है, ये स्टॉक 1% बढ़ रहा है या 5% बढ़ रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी 55 दिन में 5% बढ़ा है, तो स्टॉक क्या 10%, 8% बढ़ा है, वो आउट परफॉर्म किया है या वो अंडर परफॉर्म किया है, या वो नेगेटिव में रहा है। बहुत सा होता है ना कि मार्केट बढ़ा है बट स्टॉक नहीं चला है, तो ऐसे भी केसेस आते हैं। ठीक है, या मार्केट ज्यादा बढ़ा है स्टॉक कम चला है, या मार्केट कम चला है स्टॉक ज्यादा चला है, तो वो होता है स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अपना आपको यहाँ पे कन्विंसिंग पावर तब मिलेगा जब आपने देखे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है, राइट, अपसाइड ब्रेकआउट भी हुआ है। आरएसआई, आरएसआई मैं बता देता हूँ, आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है स्टॉक में मोमेंटम है कि नहीं। ओके, इसमें 70 जो होता है उसको ओवरबॉट बोला जाता है, 30 जो होता है उसको ओवरसोल्ड बोला जाता है। ओके, एंड ओवर 30 से जब घूम के ऊपर जाता है तो बाइंग है, और 70 से घूम के नीचे आता है तो सेलिंग है। ठीक है, बट अपने ये 30-70 वाला जो कंसेप्ट है, दैट इज ओनली फॉर द रेंज मार्केट।
ठीक है, लोगों को लगता है कि एक स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, तो वो 70 के ऊपर जब भी चला गया तो लगता है कि वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। द स्टॉक कैन रिमेन इन ओवरबॉट कंडीशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई स्ट्रेंथ है, इट इज अ स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। आरएसआई इज अ रिलेटिव, वो मोमेंटम बताता है आपको इसमें स्टॉक में मोमेंटम है कि नहीं। तो 70, 80, 90, 95 तक भी आरएसआई हो जाता है, जिनमें अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, ठीक है। तो जो लोग 70 में आके, ये 70-30 वाला जो थ्योरी है, वो आप सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट में काम करेगा, नॉट इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, ओके। तो अपने वापस से स्टॉकेज, आरएस सेक्टर एंड आरएस मार्केट में यही डिफरेंस है आशीष जी। आरएस सेक्टर होता है वो सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर मैं फर्टिलाइजर सेक्टर में देख रहा हूँ स्टॉक्स को, अब मैं दीपक फर्टिलाइजर देख रहा हूँ और मैं फर्टिलाइजर सेक्टर देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फर्टिलाइजर सेक्टर मान लीजिए 5% बढ़ा है और दीपक फर्टिलाइजर 10% बढ़ा है, तो आरएस सेक्टर जो है दीपक फर्टिलाइजर का ज्यादा है। दैट इज कंपेरिजन विद द सेक्टर। आरएस सेक्टर इज अ comparing with sector and RS market is comparing with a Nifty, okay? वो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। तो ये आरएस और आरएसआई है, बट अगेन कमिंग बैक टू चार्ट पैटर्न, इसको इंप्लीमेंट अपने कैसे करेंगे चार्ट पैटर्न्स में। ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल का या असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, फिर आपका आरएसआई 50 के ऊपर है, आरएस पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड बाय है, या स्टॉक 200 डे ईएमए के ऊपर है, ओके। ये सब पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं, आप 2 पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं, 4, ये आप पे डिपेंड करता है, वॉट एवर पैरामीटर्स यू कैन यूज, ठीक है, जिसको आपसे कन्विक्शन मिले। तो जितने भी आप पैटर्न्स लगाए, साथ में ये सब कंफर्मिंग इंडिकेटर्स भी यूज कर लें, सो दैट आप कोई फॉल्स ब्रेकआउट में ना फंसे, ओके। होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो सर क्या आप इंटरडे का सेशन लेंगे, चार्ट पैटर्न काफी अच्छी तरीके से बताया है। थैंक यू गांधी जी, ठीक है। तो ये सब जो ट्रेड्स है नॉट मतलब इंट्राडे में नहीं होता है, ये आपके जस्ट पोजिशनल ट्रेड्स के लिए है, ठीक है। ये पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, बट चार्ट पैटर्न्स आपका हर टाइम फ्रेम में बन सकता है, 15 मिनट्स में ही बन सकता है, हाफ एन आवर में भी बन सकता है, वन वन आवर की कैंडल पैटर्न में भी बन सकता है। तो एवरी पैटर्न में आपका कैंडल्स ये चार्ट पैटर्न बन सकता है, ठीक है। बट इट इज बेटर टू अवॉइड, आई विल सजेस्ट टू अवॉइड इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत लोगों का इंट्राडे का फैसिनेशन है, बट ये मेरा पर्सनल सजेशन है नॉट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको जो ब्रोकर्स होंगे दे में बता सकते होंगे कि आप ट्रेडिंग कीजिए, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि इंट्राडे नहीं करके आप पोजिशनल स्विंग एंड इन्वेस्टिंग कीजिए, दैट इज अ बेटर, दैट विल सेव लॉट ऑफ मनी। इंट्राडे में बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत समय लगता है और बहुत टफ हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ, लोगों का फैसिनेशन होता है इंट्राडे के लिए, मैं इंट्राडे में लगता है थोड़े समय में बहुत पैसा कमा लूंगा, बट बिलीव मी स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट इजी दैट एवरीबडी कैन कम एंड अर्न you know good amount of money in doing intraday. It is not that easy, it is really very tough। इंट्राडे सबको लगता है स्टॉक मार्केट में पानी पैसा बह रहा है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज वेरी टफ। जैसे कि कोई भी और भी प्रोफेशन है आपका, सीए, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, वैसे ही एक आप स्टॉक मार्केट में भी आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको वैसे ही स्टडी करना हो, यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल, इट नीड्स 5 to 10 years टू बिकम अ एक्सपर्ट इन द मार्केट। अगर वो भी आप अगर प्रॉपर स्टडी और सब कुछ करते हैं तो, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट इजी, तो आप इंट्राडे अवॉइड किए, दैट इज माय पर्सनल सजेशन, ओके। सो कमिंग बैक टू द पैटर्न्स, अच्छा और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सा लोगों का गलती होता है कि वो गलत टाइम में गलत ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। क्या होती है प्रॉब्लम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या हुआ, अप ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न जो है, डाउन बियरिश पैटर्न है, उनमें ट्रेडिंग किया, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है और वो डाउन ट्रेंड जो स्टॉक बियरिश ब्रेकडाउन दे रहे हैं, उन्होंने उसमें सेल कर दिया। जो बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है उसमें बाय नहीं किया, बट मैंने बियरिश ब्रेकडाउन किया, ठीक है, बियरिश ब्रेकडाउन में सेल कर दिया। अब आप पूछेंगे सर कैसे पता चलेगा मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है या डाउन है, ओके। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है या डाउन है आप लोग खुद ही मुझे बता देंगे। अभी का मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्लीज ऑन चैट बॉक्स एवरीबॉडी, please tell me what is the trend of the market, current trend, any answers, what is the current trend of the overall stock market, Indian stock market, uptrend bull, okay। संजय जी आप, ओमकार जी आप, हार्दिक जी आप, ओके। किसी का नाम मिस हो गया तो सॉरी, जयका जी आप,
दीपक जी आप, योगेश जी आप, ओके। तो लीना जी आप, अनूप जी साइडवेज, ओके। पीयूष जी अप ट्रेंड। तो 90% ऑफ द रिस्पॉन्स अभी तक जिसमें मुझे आया, नॉट एबल टू से भी आया, ओके। साइडवेज, तो नॉट एबल, 90% ऑफ द अभी जो आया वो ट्रेंड अप है। तो मेरा भी वही मानना है कि ट्रेंड इज अप। 2-4 दिन के लिए अपने ट्रेंड नहीं बोल सकते, 2-4 दिन में अगर स्टॉक प्राइस नहीं मूव किया अपने ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं। स्टॉक का ट्रेंड एक ओवरऑल लिखा जाता है, ठीक है, ओवरऑल देखा जाता है। और इसका तरीका क्या है, स्टॉक एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप निकाल सकते हैं 20 डे ईएमए के साथ, मीडियम ट्रेंड आप 50 या 100 डे ईएमए के साथ निकाल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप 200 डे ईएमए से जज कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट या कोई स्टॉक 200 डे ईएमए के ऊपर चल रहा है या एसएमए के ऊपर चल रहा है, देन द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज ओवरऑल, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज अप, ओके। अगर 50 डे और 50 डे के ऊपर चल रहा है, देन द मीडियम टर्म ट्रेंड इज अप, एंड 20 डे के ऊपर चल रहा है, देन द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अप, और 20 डे के नीचे चल रहा है, देन द ऊपर से नीचे आ रहा है, देन द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज डाउन, ठीक है। 50 के नीचे चल रहा है, देन द मीडियम टर्म ट्रेंड इज डाउन, और अगर 200 डे के नीचे चल रहा है तो मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल बहुत आसान चीज नहीं है। कभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो अपने के थोड़ा सा सेलिंग आता है तो हम लोग को लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का, मार्केट बुलिश से बेयरिश हो गया है। ट्रेंड रिवर्सल इज नॉट दैट इजी, इतना सिंपल नहीं है। बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा इसमें लगेगा, तब जाके कोई बहुत बड़ा ग्लोबल फैक्टर होगा, देन ओनली द ट्रेंड विल रिवर्स, ठीक है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। गर्मी के सीजन में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो एक बार बारिश हो जाती है, तो क्या गर्मी खत्म हो जाती है? समर सीजन इज गॉन? नो, द सीजन इज इंटैक्ट, ओनली शॉर्ट टर्म करेक्शन थोड़ा सा मिल जाता है। तो सेम वे मार्केट में क्या होता है, गर्मी का सीजन ही चल रहा है, बट एक दिन बहुत गर्मी होने के बाद बारिश हो गई, तो अपने को वो बारिश इज अ करेक्शन, ठीक है, दैट इज नॉट अ, गर्मी से ठंडा नहीं आ गया है। तो सेम वे स्टॉक मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है, तो दैट इज अ चेंज ऑफ करेक्शन। वो थोड़ा वेदर चेंज हुआ है, सीजन चेंज नहीं हुआ है सर, ठीक है, वो सीजन चेंज नहीं हुआ है, दैट इज अ चेंज ऑफ वेदर। तो स्टॉक मार्केट इज द सेम थिंग, दैट करेक्शन इज अ चेंज ऑफ वेदर, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ओके, ट्रेंड हैज नॉट चेंज। तो ये चीज आपको याद रखना है, चेंज, ट्रेंड चेंज इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है। कोई भी ग्लोबल फैक्टर या कोई बहुत डोमेस्टिक बड़ा फैक्टर, जनरली जितने भी आज तक वर्ल्ड मार्केट में क्रैश आए हैं वो आए ग्लोबल रीजन के लिए आए हैं, डोमेस्टिक रीजन से भी नहीं होता है, ग्लोबल रीजन होता है, देन ओनली द मार्केट क्रैशेस। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा रीजन होना हो, बाकी क्या आपका करेक्शन होता है। तो अप ट्रेंड मार्केट में बाय ऑन डिप्स, आपको करेक्शन मिल रहा है, आप बाय कीजिए आराम से, अपने जो डिसिप्लिन है टारगेट एंड स्टॉप लॉस उसको मेंटेन रखिए एंड डू द ट्रेडिंग आराम से, ठीक है। थैंक यू दीपक जी, सचिन जी, यू ऑल लाइक द दिस एनालॉजी, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी लाइफ की बात है जिससे अपने आप मिला सकते हैं। तो कमिंग, हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि जब ट्रेंड अप है वहां पे अपने को बेयरिश पैटर्न्स नहीं करना है, इररिस्पेक्टिव, और स्टॉकेज में भी आपका अलर्ट आ रहा है कि इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया है, बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है, तो आई विल नॉट गो फॉर अ डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। आई विल, अगर कोई असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, बाय दिया है, तो मैं बाय करना चाहूंगा, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। तो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बुलिश स्ट्रेटजीज, डाउन ट्रेंड में बेयरिश स्ट्रेटजी, सिंपल, ओके। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आई जस्ट गो बैक टू द पीडीएफ नाउ। तो ये मैं तो डिसेंडिंग ट्रायंगल इज द सेम, इट्स अ बियरिश पैटर्न, ये बियरिश पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यू कैन सी वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एंड दिस इज वन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आप लोग को पता ही है कैसे बनता है, लोअर लोअर हाइट से बनता है, ठीक है, लोअर हाइट से, एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनी है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस है, द प्राइस स्टॉक इज टेकिंग सपोर्ट, और यहाँ पे डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है, प्राइस नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, ठीक है, द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो। तो बट डिसेंडिंग ट्रायंगल आप बुलिश मार्केट में नहीं करेंगे, ओके।
सो टारगेट इसका कैसे निकालते हैं, सेम अपने हाई और लो को डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ पे ब्रेकडाउन पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, ब्रेकडाउन पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वील गेट द टारगेट। अच्छा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है मैं पहले जो सेशन लिया हूँ और जो क्वेश्चंस आए वो मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक आप में आया नहीं है, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। तो एक 1 मिनट, सॉरी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर फ्यूचर ऑप्शन में स्टॉक नहीं है तो मैं इसको कैसे यूज करूं, मैं सेल तो कर नहीं सकता हूं। तो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ बियरिश, यू नो बियरिश स्टॉक्स का मैं कैसे एडवांटेज उठाऊं। तो इसका मेरा दो आंसर होता है जो मैं आप लोग को ही बता दे रहा हूँ। फर्स्ट इज, अगर कोई स्टॉक ने बियरिश पैटर्न बनाया है, ठीक है, तो अगर वो आपके डिमैट अकाउंट में है, आप ऑलरेडी उसको होल्ड कर रहे हैं, तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। आपका प्रॉफिट आ रहा है उसमें या आप लॉस में भी है, तो आप, ये बेयरिश पैटर्न बना है तो आपको लगता है ये और नीचे जा सकता है, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन होल्ड इट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको होल्ड करना चाहिए, ज्यादा लंबे तक समय तक रखना है, ठीक है। अगर या फिर आप अगर वो स्टॉक को लेने का सोच रहे थे, अगर मैं कोई स्टॉक में डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया है और मैं उसको लेने का सोच रहा था, तो आई विल, आज मैं लेने का सोच रहा था और मुझे आज ही स्टॉक एज में अलर्ट आ गया कि स्टॉक एज ने डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया है, तो व्हाट विल बी माय एक्शन, आई विल वेट, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि इसने एक बियरिश पैटर्न बनाया। वो स्टॉक को गिरने दूंगा और नीचे अगर वापस से अपने डिमांड जोन या सपोर्ट एरिया से बढ़ता है, देन आई लुक टू बाय, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल दे दिया ब्रेकडाउन तो वो नीचे गिरता ही जाएगा, एक पॉइंट पे गिर के तो वो कहीं ना कहीं रुक के वापस बढ़ना है, उसका रिवर्सल तो चालू होगा ना, तो वो रिवर्सल में मैं लूंगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये पैटर्न बताया, अब आपको मैं रिवर्सल पैटर्न बताता हूँ, जो कि काफी मेरा फेवरेट पैटर्न भी है, ठीक है। और ये फेवरेट पैटर्न क्यों है, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, आपका रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। तो दिस इज माय फेवरेट पैटर्न। सो एंड दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न। ये अभी जो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ascending triangle is a upward continuation pattern, and symmetrical triangle, it can be a continuation pattern or it can be a reversal pattern, both side, क्योंकि ये both side देता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ जो मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स, दिस इज अ वेरी गुड पैटर्न, ठीक है। आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दिस पैटर्न्स, ओके। तो आई विल गो विथ मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स। और भी पैटर्न्स है बट तो पहला है डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम, डबल बॉटम इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मींस इसने क्या किया, दो बार बॉटम बनाया है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। चार्ट इसमें, साइकोलॉजी ये है कि एक पहली जब यहां से बाइंग आई थी तो प्राइस क्या हुआ था, ऊपर गया था, राइट, प्राइस हैज गॉन अप, फिर वापस उस पोजीशन पे नीचे आता है। तो मैं ये एग्जांपल यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहां से क्या होता, बाइंग आई थी तो प्राइस, बाइंग आके प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। फिर वापस से उसी पॉइंट पे प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आता है, ओके, और फिर ऊपर प्राइस जाने लगता है। तो जो लोग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय की मिस कर दिए थे, वो अगेन यहाँ पे इंटर करने लगते हैं बाय के लिए, ठीक है। वो यहाँ पे बाय के लिए इंटर करते हैं और प्राइस सपोर्ट ले लेता है एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप। तो यहाँ पे बॉटम वन एंड बॉटम टू, इसीलिए इसको डबल बॉटम पैटर्न बोला जाता है, ओके। वैसे यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे बॉटम वन एंड बॉटम टू, ठीक है। तो जो यहाँ पे बॉटम बना था, प्राइस ऊपर गया, अगेन इट हैज कम डाउन टू द सेम पोजीशन। तो जो लोग ने अपॉर्चुनिटी मिस की थी, नहीं खरीद पाए थे, वो लोग वापस से इसमें इंटर करते हैं और प्राइस में एक डिमांड आ जाती है और प्राइस, स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगता है, ओके। तो दिस इज डबल बॉटम, ठीक है। दिस इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप क्या होता है, डबल टॉप इज अ बियरिश पैटर्न, ये आपका अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे एक टॉप बनाया, फर्स्ट टॉप, और सेकंड टॉप यहाँ पे बनाया, ओके। ये टॉप बनाने के बाद जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे, ठीक है, प्राइस नीचे आ गया था, जो मैं मान लीजिए यहाँ प्राइस आया था, फिर यहाँ से सेलिंग आ गई, बट मैं यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया था, बट मैं ऊपर में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था।
वापस जब यहाँ पे प्राइस आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे वापस से स्टॉक प्राइस गिर जाएगा, तो मैंने सेलिंग चालू की। तो यहाँ पे एक सप्लाई आ गया, ये एक सप्लाई जोन बन गया और प्राइस हैज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्लाई जोन, ये है डबल टॉप। ठीक है, तो टॉप वन, टॉप टू, तो डबल टॉप इज द बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, ये अपट्रेंड में बनता है, ऊपर से प्राइस घूमता है रिवर्सल पैटर्न नीचे के साइड में। ओके, दैट इज द बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अभी मैं इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी आप लोग को बताऊंगा, जस्ट मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। ठीक है, वैसे ही ट्रिपल बॉटम में क्या होता है, 3 बार बॉटम बनते हैं, बॉटम वन, बॉटम टू, बॉटम थ्री। 3 बार बॉटम टेस्ट होने के बाद द प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप। ओके, दिस इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, वैसे ट्रिपल टॉप, 3 बार टॉप बनता है, टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री। आपको अलर्ट कब आएगा स्टॉक एज में, ये कैंडल के लो के नीचे जब बंद होगा, यहाँ पे आपको अलर्ट मिलेगा, फर्स्ट रेड कैंडल जो है, हियर यू विल गेट द अलर्ट। ठीक है, हियर यू विल गेट द अलर्ट ऑफ कि स्टॉक ने आपका डबल टॉप बना दिया है, ट्रिपल टॉप बना दिया है। ओके, तो ये थे आपके बुलिश, दो डबल टॉप इज अ बुलिश, डबल टॉप इज अ बेयरिश पैटर्न, ट्रिपल टॉप इज ऑल्सो अ बेयरिश पैटर्न। ओके, double bottom is a bullish pattern and triple bottom is also a bullish pattern. Okay, now coming back to स्टॉकेज के चार्ट में लेके चाहता हूँ आप लोगों को, और इसमें से आपको बताता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस अपने कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स के उसमें आया। ठीक है, तो डबल बॉटम। ठीक है, तो डबल बॉटम कब हुआ था, जीएनएफसी ने बनाया 10 जून को। ठीक है, किस पॉइंट पे, 590 पे। ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है, ये सॉरी ये पास्ट का है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, देन विल गो टू द रिसेंट आल्सो। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं यहाँ पे अपने, तो बॉटम वन, बॉटम टू, एंड उसके बाद सी द प्राइस हैज गॉन अप शार्पली। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी माय टारगेट। अब इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, तो टारगेट निकालने के लिए मैं आपको यहां से बता दे रहा हूं, ये जो बॉटम है, दिस बॉटम एंड ये हाई के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, दिस बॉटम एंड हाई, तो ये बॉटम जैसे कि है इसका 590। ओके, एंड ये टॉप है इसका 729। सो 590 माइनस 730, 139। सो अराउंड 140 रुपीज का टारगेट होगा मेरा। ठीक है, सो 140 रुपीज का टारगेट मीन्स 590 प्लस 140, दैट इज 730 का टारगेट था मेरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा मेरा टारगेट को अचीव कर लिया। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट को, ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये मेरा टारगेट होगा, ये रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, दैट इज द फर्स्ट टारगेट। इसमें अपने 2 टारगेट लगा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो मेरा जो जो पहले का जो ये टॉप था दिस, एंड सेकेंड टारगेट जो अपना डिफरेंस आया था, डिफरेंस कितने पॉइंट का आया था, अराउंड 140 पॉइंट्स, राइट। तो इस हाई के ऊपर दैट इज 730 पे 140 को ऐड कर सकते हैं, दैट इज 740 प्लस 130, 870। तो सेकेंड टारगेट विल बी ऑफ 870। ठीक है, इसने 776 का हाई बनाया, उसके बाद वापस से सेलिंग आई, तो टारगेट कितना बन रहा है, 870। फर्स्ट टारगेट इज दिस रेजिस्टेंस पॉइंट, यहां से लेके जो इसका जो गैप है डिफरेंस, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। ओके, एंड सेकेंड टारगेट जो है, इस डिफरेंस को आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर, दैट इज द सेकेंड टारगेट। नाउ स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, स्टॉप लॉस जो है, ये जो लोज है, इस लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, इस लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यू नो दैट स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल। ओके, जस्ट इस लो के नीचे आप थोड़ा सा फिल्टर देके यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस। ओके, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी फेवरेबल।
ओके, ये रिसेंट, ये पास्ट का था, रिसेंट में देख लेते हैं एनी स्टॉक विच हैज कम अंडर दिस। तो यूरेका फोर्ब्स हैज कम। तो यूरेका फोर्ब रिसेंटली यहाँ पे आया, ठीक है, बट यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो इसमें मैंने अगर बाय किया है तो ये, अगर मैं होता तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, क्योंकि प्राइस इसके लो के नीचे यहाँ पे बंद हो गया था, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता, ठीक है, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता, ठीक है। और कोई स्टॉक डबल बॉटम में दिख नहीं रहा है मेरे को जो रिसेंटली आया है। अभी डबल बॉटम में इसलिए स्टॉक्स नहीं आए हैं क्योंकि स्टॉक्स जो है, मार्केट का ट्रेंड अप है, तो ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर में, इसलिए बॉटम साइड में नहीं आए। जब करेक्शन होगा देन यू विल गेट लॉट ऑफ स्टॉक्स अंडर डबल बॉटम। करेक्शन के टाइम में आपको डबल बॉटम में मिलेगा स्टॉक्स। ओके, तो डबल टॉप देख लेते हैं अपने, अदानी एनर्जी, ये भी पास्ट का है, तो एक बार लर्निंग के लिए वी सी द पास्ट। पास्ट, ये देखिए, ये डबल टॉप, टॉप वन, टॉप टू, टॉप टू बना, एंड देन द स्टॉक हैज गिवन अ वेरी शार्प फॉल। ओके, तो इसने अपना देखिए फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट टारगेट, ये पॉइंट जो होगा आपका फर्स्ट टारगेट होगा सेलिंग के लिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड टारगेट क्या होगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपने यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट द सेकंड टारगेट। ओके, तो रिसेंट में लेट्स सी एनी स्टॉक विच इज कम अंडर रिसेंट। अभी बीडीएल अपने बहुत रिसेंटली आया है स्टॉक, परसों का, परसों ही आया बीडीएल। एक अप ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे टॉप वन टॉप टू बनाया। अगर कोई स्टॉक यहाँ पे, अगर ये अगर एफएनओ में है तो आप सेल कर सकते हैं, एफएनओ में नहीं है, अगर आपके डीपी में है तो आप एग्जिट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। या अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए लेने का, वेट कीजिए स्टॉक को यहाँ सपोर्ट लेवल के पास आने के लिए, देन यू कैन लुक टू बाय। या अगर यहाँ भी नहीं उगता और नीचे जाता है तो आप वहां पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अभी इसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर चलने लगता है तो आपका ये पैटर्न जो है निगेट हो जाएगा, ये पैटर्न का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा अगर ये इसके ऊपर चलने लगता है, दैट इज डबल बॉटम। अभी डबल टॉप क्यों बन रहा है अपने को, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है अप है, तो बहुत से स्टॉक अब जो करेक्शन आस्ते आस्ते देना चालू कर रहे हैं तो उनमें टॉप बनना चालू हो रहा है, ठीक है। ये था आपका जे, अब ये है आपका जेबी केमिकल फार्मा, ये देखिए, तो ये भी रिसेंट आया था, टॉप वन टॉप टू, उसके बाद स्टॉक हैज गिवन अ गुड करेक्शन। तो एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है, ये आसपास में सपोर्ट है यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे हो सकता है प्राइस आके रुके, अगर इसके नीचे जाता है तो और भी नीचे जा सकता है। तो अगर कोई बाय करने का सोच भी रहा है, अगर स्टॉक इसके आसपास में आता है देन यू कैन बाय। एक्चुअली दिस इज अ बेयरिश पैटर्न, ठीक है, दिस इज अ बेयरिश पैटर्न फॉर्म्ड इन एन अप ट्रेंड, ठीक है। तो अपने को अगर आप बाय करने का अभी सोच रहे थे तो आप अवॉइड करेंगे बाय करने के लिए, या यहाँ पे जब कभी सोच रहे थे तो आप बाय करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये था डबल टॉप। वैसे ही ट्रिपल बॉटम, नो स्टॉक इज फॉर्म अंडर ट्रिपल बॉटम, रिसेंटली कोई फॉर्म नहीं हुआ है। पास्ट में, पास्ट में आप देख सकते हैं मार्च में हुआ था श्री रेणुका शुगर्स में, तो यहाँ पे यू कैन सी बॉटम वन बॉटम टू एंड बॉटम थ्री यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके बाद प्राइस हैज गॉन अप, अपने इस लेवल के नीचे प्राइस अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से 50, 55, 53 रुपीज अभी प्राइस हो गया, राइट। तो इसमें सबसे ब्यूटी ऑफ दिस पैटर्न एंड दिस स्ट्रेटजी इज द रिस्क इज, आपको पूरा रिस्क अपना पता है कहाँ निकलना है, कोई टेंशन नहीं, जस्ट इसका रिस्क बहुत स्मॉल है, आप इसके नीचे अपने निकल सकते हैं। ओके, एमसीएक्स में ही बना था, ये बहुत पुराना है, 2022 का नहीं देखते इसको। ओके, तो ये ट्रिपल टॉप, वैसे ही अपना ट्रिपल बॉटम था, ट्रिपल टॉप विच इज अ बियरिश। ओके, रिसेंट में देखते हैं पेनी स्टॉक हैज बीन फॉर्म, पीबी फिनटेक बना है 21 जून को, मीन्स अभी हाल फिलहाल ही बना, कल ही। तो टॉप वन टॉप टू टॉप थ्री, मीन्स ये आपका सप्लाई जोन बन गया है। तो अभी ये पैटर्न क्या है, बेयरिश है, स्टॉक प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, और प्राइस इस यहाँ तक आ सकता है, 1150 के आसपास तक प्राइस आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है।
अगर इसके नीचे जाता है तो ये जो प्राइस टारगेट मैंने आपको कहा था, ये दोनों का डिफरेंस निकाल के, ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल के और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द सेकंड टारगेट। ठीक है, ओके। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, कोई भी क्वेश्चन है टारगेट को लेके, स्टॉप लॉस को लेके, सो प्लीज लेट मी नो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस। पीबी फिनटेक, पीवी फिनटेक असेंडिंग ट्रायंगल वी कैन नॉट से, बिकॉज इसमें अपवर्ड स्लोपिंग लाइन नहीं बन रही है सर। यहाँ से अगर देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो अपने पास है, बट वी आर नॉट गेटिंग अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। अगर ये पॉइंट भी लेंगे तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन दो दो पॉइंट्स नहीं मिल रहे अपने को, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज अ असेंडिंग ट्रायंगल। एंट्री आपको कब करना है? जब फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे प्राइस बंद हो जाएगा, देन दैट इज द एंट्री। फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे बंद हो जाएगा सेल में, या फर्स्ट कैंडल जो अब डबल बॉटम बना है उसके हाई के ऊपर बंद हो जाएगा, देन विल बी योर एंट्री पॉइंट। ओके, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर। तो यहाँ पे आप, ये आपका डबल टॉप बना है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं सेकेंड कैंडल में। ओके, सेकेंड कैंडल में, सेकेंड कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, तो जैसे अभी बीडीएल में आप देखेंगे, सॉरी बीडीएल, बीडीएल ने यहाँ टॉप बनाया है तो इस कैंडल में आपका एंट्री आ गया। इस कैंडल के लो के नीचे जब भी प्राइस क्लोज हुआ तो यहाँ पे आपका एंट्री आ गया। अब मैं अगर इसको सेल करता हूँ तो मेरा इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, क्लियर, एंट्री पॉइंट इज क्लियर, दिस इज ऑन अ सेल साइड। और बुलिश साइड में कहाँ पे अपनी एंट्री करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो जिस दिन यहाँ पे हाई, ये डबल बॉटम बना है, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है तो यू विल गेट एन एंट्री, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। ओके, तो हाई के ऊपर जब क्लोज होगा, तो डबल बॉटम बनने के बाद फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर बंद होता है, देन इट्स अ बाय बाय एंट्री। और सेल का एंट्री डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनने के बाद फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे बंद होता है, देन यू विल गेट अ एंट्री फॉर द बेयरिश। ओके, एनी क्लियर, एनी डाउट इन बीडीएल कैन बी ट्रेड ऑन इंट्राडे? इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो व्हाट यू कैन डू, अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर अगर इसका ट्रेंड अब मेरे को पता है कि बेयरिश हो गया है, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब बेयरिश मुझे ट्रेंड इंट्राडे में इसका क्या है, बीडीएल का बेयरिश है, तो इंट्राडे में अगर मुझे करना है तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस के पास इंट्राडे में मैं देखूंगा कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ओके, या प्रीवियस डे हाई, कल के हाई के आसपास में अगर मेरे को यहाँ के आसपास हाई के आसपास में मिलता है तो मैं बेचने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके, इंट्राडे अगर करना चाहता हूँ तो इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देख लेना होगा। स्टॉक एक घंटे का टाइम फ्रेम देख लीजिए इंट्राडे में वो कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, देन सेल एट द रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, स्टॉकेज में ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन अलर्ट, रश्मि जी, यू विल गेट सॉरी, यू विल गेट एन अलर्ट। ओके, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, यू विल गेट एन अलर्ट। और अदरवाइज यू कैन ओनली मेक एन स्टॉक, अपना वो बना लेंगे आप, स्टॉकेज का वॉच लिस्ट बनाएंगे। आपने सपोज 20 स्टॉक वॉच लिस्ट में डाल के रखे हैं, तो वॉच लिस्ट में अगर वो उसमें आप क्लिक करेंगे, सपोज बीडीएल आपके वॉच लिस्ट में है, तो अगर आप बीडीएल में क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें डबल टॉप पैटर्न बना है, तो यू हैव टू मेक अ वॉच लिस्ट इन योर स्टॉकेज ऐप में। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग इन स्टॉकेज क्लब में, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा काशिफ जी। आप हैशटैग रिकॉर्डिंग्स करके डालेंगे, सो यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। ओके, सो acha, any doubt? See, there are other patterns also, but time is limited, so I'll not be able to cover more patterns today. Okay, but as promised, if anybody have any question regarding individual questions, अगर किसी को stocks के लिए पूछना है, though this is out of topic, but अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, I'll try to answer. Individual stocks आप पूछ सकते हैं. The session on chart patterns is over. If anybody wants to leave, they can leave. Okay, if they have any query, they can ask me if any doubt. Okay, hope you have all liked this session. Okay, enjoyed it and got some learning from this session. क्राफ्ट्समैन में 21 जून को एक
बड़ी कैंडल, ओके। क्राफ्टमैन में एक बिहाविश कैंडल बना है, बिहाविश कैंडल, क्या कंटिन्यू करें या एग्जिट कर जाए? क्राफ्टमैन, लेट मी चेक। क्राफ्टमैन अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आया था। क्राफ्टमैन में एक बेयरिश पैटर्न बना है, तो अपने को एग्जिट नहीं करना है, बिकॉज ये पैटर्न तो ऐसे ही चलेगा। ऊपर जाके एक बेयरिश कैंडल बनेगा, अपने को टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो अपने को होल्ड रखना है पोजीशन। ओके, अपने को होल्ड रखना है पोजीशन। आप यहाँ क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर आपने नीचे में बाय किया हुआ है, यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। आपको ज्यादा लॉस नहीं देखना है, आप इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है, यू मेंटेन अ स्टॉप लॉस विद दिस, लो के कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जस्ट एक मिनट, मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हुआ है, मैं चार्ज में लगा लूं। या सो आप इसमें एक स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा ले, डोंट एग्जिट नाउ। ओके, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इसका रिवर्सल हुआ है, बाई के साइड में बहुत बड़ी बुलिश कैंडल के साथ हुआ है, वॉल्यूम अच्छा हुआ है। तो थोड़ा एक बाइंग के बाद थोड़ा करेक्शन या एक रेंज बॉन्ड स्टॉक में ट्रेडिंग हो सकती है। सो माई सजेशन इज टू होल्ड द स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मेंटेन अ स्टॉप लॉस विद इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, Apple's shorting can be do in cash. राजेश जी, यू कैनॉट शॉर्ट इन कैश, सिर्फ इंट्राडे में आप कर सकते हैं, जो आपको 3:30 के पहले कवर करना पड़ेगा। आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत बड़ा फाइन लग जाता है, पेनाल्टी लग जाती है, ऑप्शन लग जाता है। ठीक है, तो इंट्राडे शॉर्टिंग ओनली फॉर इंट्राडे कर सकते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओके, व्हाई डज फॉल्स ब्रेकआउट हैपन? फॉल्स ब्रेकआउट हैपन टू ट्रैप द इन्वेस्टर्स। मार्केट में बहुत से मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है, जो लोग जानते हैं कि हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल सब देख रहे हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट होता है ट्रैप करने के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटर्स होते हैं मार्केट में, जिनको पता होता है कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे है। ठीक है, तो आप कितनी बार देखते होंगे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आपने बाई किया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वापस से ऊपर चला गया, बिकॉज दे आर स्टॉप लॉस हंटर्स। उनको पता है, अपनी साइकोलॉजी पता है कि अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहाँ तक रख सकता है, ठीक है, कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है। सो दे ऑल नो द साइकोलॉजी एंड दे प्ले विद द साइकोलॉजी। तो फॉल्स ब्रेकआउट कभी कदा आपका मैनिपुलेशन की वजह से भी होता है, और कभी कदा आपका न्यूज एंड ह्यूमर के ऊपर भी होता है, कि मार्केट में कोई ह्यूमर था, उसकी वजह से सब लोगों ने बाइंग करने लगे। ओके, बाद में पता चला कि ये फॉल्स न्यूज है, तो वापस से सब सेल करने लगते हैं। तो दैट, तो बिकॉज ऑफ रूमर्स ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ market manipulators also, they stop false breakout happens in the market. Okay, Sonal ji. In terms of demand and supply, false breakout, how do you explain? Okay, next week fertilizer stocks up होकर suddenly next day down हो गए, मंडे क्या होगा? तो मार्केट का सर यही वो है कि स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं, एंड अगेन इट्स गोइंग अप। अभी जब तक आपका वो ब्रेकआउट लेवल के नीचे नहीं जाता है, यू कैन होल्ड द स्टॉक, फर्टिलाइजर स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बार बंद होने के बाद थोड़ा क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। जिन्होंने लोअर लेवल्स में बाय किया होता है, ठीक है, तो वो लोग ब्रेकआउट में एग्जिट करने लगते हैं, वो ब्रेकआउट में एग्जिट करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में करेक्शन आने लगता है। तो मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं, तो जिन्होंने सपोर्ट पे बाय किया है और ब्रेकआउट हुआ है तो दे विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, और जो लोग ब्रेकआउट में बाय किए हैं उनकी वजह से बाइंग प्रेशर आया, प्राइस ऊपर गया। बट मैंने अगर कोई स्टॉक 100 रुपए में लिया था, आज वो 125 रुपए हो गया है, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद 125 हो गया। ठीक है, बट मैंने उसको लिया था 100 या 90 रुपए में लिया था, मेरे को अच्छा प्रॉफिट आ गया। बट जिन्होंने 110, 115, 120 में लिया है, उनके लिए अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो अपने पोजीशन होल्ड रखेंगे, राइट। बट जिन्होंने नीचे लिया है, वो अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसकी वजह से प्राइस में करेक्शन आ जाता है। जो लोअर लेवल्स में बाय किया होता है, दे विल बुक अ प्रॉफिट। ओके, ब्रेकआउट इज अ फ्रेश बाइंग। ओके, ब्रेकआउट इज अ फ्रेश बाइंग होती है। बट नीचे ने भी तो किसी ने बाय किया हुआ है, जो जो नीचे बाय किए हुए हैं, उनको तो प्रॉफिट आ रहा है, वो एग्जिट करेंगे, राइट।
जैसे कि क्राफ्ट्समैन में अगर किसी ने कोई स्टॉक तो यहाँ तो किसी ने तो बाय किया है, राइट? तो यहाँ के लोगों ने जो बाय किया है वो यहाँ पे क्यों ना बेचे, वो बेचेंगे यहाँ पे, उनको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। या वो यहाँ पे क्यों नहीं बेचे, उन्होंने बेचा तो वो आया। बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम आया है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी आई है। तो देयर इज अ फ्रेश बाइंग हैज कम अप इन दिस स्टॉक। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है दे विल कीप होल्डिंग द पोजिशन, राइट? सो अभी आप इसको होल्ड ही रखिए क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। माय सजेशन इज टू होल्ड क्राफ्टमैन। ओके, नेक्स्ट स्टॉक HDFC लाइफ। ओके, HDFC लाइफ का आप देखेंगे तो एक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। यू कैन सी द प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज। ये हाई जो है इससे लोअर है, राइट? ये हाई इससे लोअर है और ये हाई भी इससे लोअर है। तो अभी ये करेक्शन मोड में चल रहा है। ओके, और स्टॉक का अगर आप इसको और लॉन्गर फ्रेम चार्ट में खोल लेता हूँ, इसको मैं वीकली कर लेता हूँ सो दैट आई कैन सी ऑल द पिक्चर। तो यहाँ पे यू कैन सी डाउन लोअर लोअर हाइज बना रहा है। ओके, एंड द प्राइस हैज अ सपोर्ट हियर। तो अभी इसको आप नहीं बाय कर, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो यू शुड लुक टू बाय नियर द सपोर्ट लेवल, इसके आसपास में बाय करना है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर चलता है, क्योंकि यहाँ पे इसने अच्छा वॉल्यूम के साथ मूव अप दिया था बट वापस से करेक्शन आ गया है, तो नेक्स्ट अगर इसके ऊपर चलता है देन यू कैन इंटर और यू लुक टू इंटर नियर द सपोर्ट लेवल। ठीक है, सपोर्ट लेवल अराउंड 520 530 के पास में यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज डिस्कस अबाउट TCS. There are two groups of people, one who understand fully well, another group who did not understand anything. Both group may have any doubt. I belong to the second group. Language. Okay. लीना मोहन जी, लैंग्वेज वेरी सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, आपको नहीं समझ में आया। The language, I hope you, I can make you understand, but I think you prefer English, right? Because I've conducted in Hindi because most of the people were asking me to conduct the webinar in Hindi. So that's why I've conducted in Hindi. Okay. So you can ask me your doubt individually. I'll try to solve your problem. Okay. Whatever you have, whatever doubts you have, you can ask me now. Okay. Or you can ask me, on in club by tagging me. Okay. So sorry for those who could not understand because of the language problem, because I don't know what to do, because some people understand English, some people understand Hindi. So it become very difficult for me. It's very challenging how to manage both the language. Okay. English will serve all. Okay. But I was conducting in English only, Leena ji, but many people demanded to conduct it in English, in Hindi. So I changed to Hindi. Okay. So you please tell me your doubts. I'll take extra time for you and try to solve your doubts. Okay. What's your good name? My good name is Sanjeev ji. My name is Amar. It's AMMAR. Amar Mirza. Happiest mind, how to reach out to you on social club. You can tag my name. You can tag, at the rate AMMAR, you'll write my name. Okay. You'll get my name, full name, Amar Ali Mirza. Okay. You'll get my full name. You'll just write at the rate AMMAR. Okay. So you can tag me there. HAL. Okay. So I'll open HAL. So HAL also you can see it has formed mainly a double top kind of pattern. So this was top one, top two. This is a double top pattern kind of has been formed. Okay.
So many patterns, it may not come in the stock edge. Why? Because stock edge, there is some logic has been put. Only then when certain logics, it will, all the criteria will get fulfilled, then only that will come under the scan. Okay, so you may miss some scan, but by seeing eyes on our, visualizing it, we can see it's a kind of double top pattern kind. Okay, so HAL, it is under profit mode, profit booking mode, it is taking resistance. Okay, if you are already holding the stock, you can book profit. For short term, if you're holding it, overall trend of the stock is up. If you are trading it for short term, you can book profit, okay, and exit and look to buy near support levels, okay. If you are wanting to buy new fresh entry, then wait for the stock to find support at this around 400, 4,400 level or 3,800 level. Look to buy around that level, okay. Okay. HAL, HDFC Life, okay. So Leena ji, please you can raise your doubts, because I'll not like if any of the participant have not understood anything. So I can't waste anybody's time just because of the language. So I'll take extra time for you, okay, and try to solve your doubt. You can raise your questions, whatever you have not understand. P61. So you can see here the three candles, okay. It is not able to break the highs, okay. Short term, it is under profit booking mode, okay. Short term. If you are planning to buy, wait for the stock to come near the support level or move above this high. Then only you can make a fresh entry. Bandhan Bank, I have seen Bandhan Bank. It is a reversal mode. Bandhan Bank is looking good. It's a reversal mode. So Bandhan Bank, you can see it's in a reversal mode. It has changed. If you see the weekly chart, it will give you a clear picture. So Bandhan Bank, you can see it was trending down from long time. It was slowly trending down, but now it has given a good sharp bounce back. Okay, so I am expecting a good reversal in Bandhan Bank. Okay, so first target for Bandhan Bank is up to this point, say around 240, 250 levels, 252. This is how much? 265. So up to 265 is the target. First target I'm expecting. Okay, so Bandhan Bank, those who have bought it, they can hold it. Okay, and you can also make fresh entry in Bandhan Bank. So a lot of stocks coming now. Titan. Titan also, it's a, as you can see, it has formed three, candles. Okay, three bearish candles. So wait for Titan. Better to see a long time frame. I prefer using weekly charts. Okay, I'll suggest you to use weekly chart that give you a, good view. You can combine daily and weekly charts and use. So you can see the overall trend is up, and I think it has broken its, you know, I'll just hold on. I'll just open trading view chart. That's give a better charting. Thank you, Leena ji. Thank you. But if you still have any doubts, you can tag me personally in the StockEdge app social, okay, related to chart patterns, okay. And if you have not understood only, you can also ask the customer, support team. You can connect me over phone also if you have any doubt, particularly, with in relation to any chart pattern, then I'll try to explain you there, okay. Thank you for your, support and coordination.
So I was discussing Titan. So Titan, you can see the overall trend is up. Overall trend of the stock is up, right? But if I draw from this point, okay, these 2 points, okay, you can see the trend is up, okay, and the stock is currently, they have taken resistance of this level. So the stock may test its support level. It can come up to this level. That is, I'll tell you the point. It is 3216. Okay. So around 3200, 3200 to this low is 3500. So look to buy near 3200 to 3000 level. Okay. 3200 to 3000 because the stock is giving correction. It has closed near its previous week low. Previous week low was 3370. Okay. So it has closed just near its previous week low. If it closed below this, if it trades below this, then 32 to 3000 level is expected and it can test its trend line. Okay. Apple. So Apple, you can see it has bounced back, this from its support level. Okay. So, and it is expected, and you can see that the RSI is also moving up. RSI is also moving up, and stock has also started moving up in an upward direction. So it is expected to go up. Okay. So you can hold Apple. As of now, you can hold the Apple. Okay. Okay. So thank you, everybody. With this, I would like to end the session because, it's already 7:40. The time was up to 6 to 7. Okay. And thank you for your patience. Okay. Hope you have all liked the session. If you, and sorry for those who have not understood or missed something and I've not answered some questions. I've missed some questions. Okay. Some questions I may have missed. Okay. So sorry for that. So thanks for being the I have to go because I have to end the session. Okay. So we'll be conducting every month, every Saturday, we are conducting session on chart patterns. Any doubt, you can repeat the session. Okay. So 90% of the times I take the session on chart patterns, but if I'm not available, so some another analyst comes and he'll take the session on chart patterns. Okay. You'll get the recordings, Aditi ji. Okay. Okay. So I'm ending the session. Okay. So thank you and hope you all have a profitable week. Thank you for being with me.